صحت کی سہولیات میں بہتری کیسے آئے گی؟ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں نئے بلاک کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی۔ کورونا لاک ڈاؤن میں پنجاب حکومت کی انوکھی منطق، شعبہ صحت کو فنڈز دینے کے بجائے واپس لے لیے گئے۔ شعبہ ایمرجنسی کی نئی عمارت اور اکوپمنٹس کے لیے جاری شدہ 115 ملین روپے واپس لے لیے گئے۔ منصوبے کے لیے کل 238 ملین روپے جاری کیے گئے تھے۔ جنوبی پنجاب کی بے سہارا خواتین کو حکومت کا سہارا، پنجاب حکومت کی جانب سے صوبہ بھر کی خواتین کے لیے خصوصی فنڈز مختص۔ ملتان شیلٹر ہوم کے قیام اور انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کے لیے 2,53,12,000 مختص۔ بے سہارا خواتین کے لیے شیلٹر ہوم کے قیام کے لیے 1,80,12,000 روپے مختص۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کے لیے 50 لاکھ روپے کے فنڈز کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں درآمدات پر حکومتی بڑی چھوٹ، امپورٹر خوش FBR ناخوش۔ حکومت نے گھی پر کسٹم ڈیوٹی کو 2% اور 0% تک کم کر دیا۔ 90% سے زائد خام مٹیریل پر بھی امپورٹ ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 3% تک محدود کر دی گئی۔ صرف امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں ہی FBR بہاولپور آفس کو 50 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوگا۔ گندم محفوظ سٹور کرنے کے نام پر بجٹ میں بہاولپور کے عوام کو لالی پاپ دے دیا گیا۔ محکمہ خوراک کو سائلوز بنانے کے لیے ایک بار پھر فنڈز مختص۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور میں 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو محفوظ کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم مختص۔ پہلے مرحلے میں صرف 10 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ فنڈز لینے ہیں تو نوکری نہیں کرنی اور ناٹ فٹ فار ورک کا سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہے۔ ملتان میں معذور افراد کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ملنے والے فنڈز پر نئی شرط رکھ دی گئی۔ معذوری کے باوجود کام کرنے والے خصوصی افراد کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کی بڑی کاوش، پنجاب بھر میں ورلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو بزنس نے دائرہ کار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھایا جائے گا۔ حج 2020 کے حوالے سے سعودی حکومت کے فیصلے، رواں برس حاجی کیمپس کی رونقیں ماند رہیں گی۔ ڈائریکٹر حج کیمپس ملتان ریحان کھوکھر نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے 10,000 سے زائد عازمین حج کی جانب سے مالیاتی اداروں کو جمع کرائی گئی رقوم کی واپسی کا سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ ملتان میں گندم خریداری مہم مکمل، ڈویژن بھر میں گندم خریداری ٹارگٹ 90% حاصل کیا جا سکا۔ زائد بارشوں ٹڈی دل کے باعث 10% ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ ڈویژن میں گندم خریداری ٹارگٹ 7,34,575 میٹرک ٹن رکھا گیا تھا۔ خانیوال میں شوگر مافیا کا راج برقرار، دکاندار چینی کی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ کہیں چینی 80، کہیں 82 اور کہیں 85 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 70 روپے کلو چینی دینے کے لیے لگائے گئے اسٹال غائب، سستی چینی اسٹال پر گدے باندھ دیے گئے۔ شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل پر پھول اور ٹینڈے لگنا شروع۔ کپاس کی فصل پر جسٹ، سبز تیلے، گلابی سنڈی، وائٹ فلائی اور لکشری سنڈی کا حملہ نمایاں۔ ڈائریکٹر کاٹن ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا ہے کہ کپاس کی بہتر فصل کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی روزانہ کی بنیاد پر سکاؤٹنگ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا بقرعید پر مویشی منڈیاں لگانے کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے SOPs کے تحت مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی۔ منڈی کے داخلی راستوں پر ڈس انفیکشن گیٹس لگائے جائیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو مویشی منڈیاں لگانے بارے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈی لگانے کی تیاریاں، ڈیرہ غازی خان میں پل کمبر اور چوک اعظم کو ماڈل منڈی بنانے پر غور۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال کی کیٹل مارکیٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے میٹنگ۔ چھوٹے جانور پر 100 اور بڑے جانور پر 500 روپے فیس وصولی مقرر۔ سائلین کی درخواست کے بروقت ازالے کے لیے احسن اقدام، ڈپٹی کمشنر ملتان کے شکایات سیل کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ شکایات کی آن لائن مانیٹرنگ ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آصف اقبال نے بریفنگ دی۔
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से सड़क देने का मामला, प्रिंसिपल प्रोफेसर तनवीर अख्तर खान ने कहा कि रास्ता देने से कॉलेज गैर महफूज हो जाएगा। साबिक यूसी चेयरमैन पर असर रसूख का इस्तेमाल करके सड़क निकलवाने का इल्जाम। मुल्तान में पार्क्स की बहाली का काम इल्तवा का शिकार, पीएचए मुल्तान को रवा साल भी फंड जारी न किए जा सके। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को 4 साल से तरक्याती फंड की कमी का सामना। शाहरुख ने आलम कॉलोनी में 15 से ज्यादा खुली जगहों के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। चिश्तिया में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, मैपको अहलकारों ने शहर की 6 मेन वाटर सप्लाइयों के कनेक्शन काट दिए। शहर भर में सुबह से पानी की फराहमी मुअत्तल, शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मैपको हुकाम का कहना है कि 2 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किया गया। मुजफ्फरगढ़ में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, दीनपुर और सिटी फीडर्स बंद होने से शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मैपको हुकाम ने कहा कि मेंटेनेंस का काम जारी है, दोपहर तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सब्जी मंडी बनी को 13 साल गुजर गए मगर सीवरेज सिस्टम ना बन सका। बहावलपुर सब्जी मंडी अरसा दराज से नजरअंदाज रही, सही कसर तजावुजात माफिया ने पूरी कर दी। ताजों का अरबाब इख्तियार से मसाइल के हल का मुतालबा। रहीम यार खान की हसन कॉलोनी की मसरूफ सड़क टूट फूट का शिकार, राहगीरों को मुश्किलात। राजनपुर की ज़िया शहीद रोड अरसे दराज से खस्ता हाल। मेलसी में कॉलोनी चौक से कहरोड पक्का रोड, रेलवे फाटक तक जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज का पानी रोड पर जमा, अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तनख्वाहें बढ़ाओ या महंगाई कम करो, डीजी खान, रहीम या खान और लैया में ऐप का मुलाजमीन की हड़ताल। सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने पर शदीद नारेबाजी, अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। अस्पतालों में क्लर्क की पोस्टों को भी बहाल करने का मुतालबा। यकम जुलाई से सब सेक्रेटेरिएट के कयाम के ऐलानात, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी कमर कसी। न्यू कचहरी रोड और एतराफ की सड़कों की किस्मत जाग उठी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सड़कों की धुलाई शुरू। बख्तावर अमीन अस्पताल से अराजी रिकॉर्ड सेंटर तक सड़क को चमका दिया गया। 50 सैनिटरी वर्कर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड खुसूसी सफाई करने लगा। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर और फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई, तरंडा मोहम्मद पनाह शबोशा मार्केट से मिलावटशुदा 2160 किलो सुर्ख मिर्च और 40 किलो हल्दी बरामद, दुकान को सील कर दिया गया। बहावलपुर शहर के मारूफ बिल्डर केस में गफलत बरतना, एसएचओ कोतवाली को महंगा पड़ गया। डीपीओ सुहेब अशरफ ने एसएचओ ताहिर इकबाल को मुअत्तल कर दिया। टॉन्सा में तहसीलदार की ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का मामला, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने सूबाई सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 1 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में खोट-बोट करने का इल्जाम, राजनपुर पंजाब एजुकेशन के टीचर की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मुल्तान ने मुलजिम की अबूरी जमानत 50,000 के जमानती मशरकों के एवज मंजूर कर ली। हेड पंजनर टोल प्लाजा पर ठेकेदार की केस अदायगी केस की समाअत, मुल्तान बेंच ने जवाब न देने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब हेड बैराजेस को 29 जून को इन पर्सन तलब कर लिया। हेड पंजनत बहाली मंसूबा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेक्रेटरी इरिगेशन, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, चीफ इंजीनियर डेरा गाजी खान, एसडीओ समेत दीगर से जवाब तलब कर रखा था। बहावलपुर में सजाए मौत का मुलजिम रिहा, अब्दुल सत्तार पर कत्ल का जुर्म साबित न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर ने जुर्म साबित न होने पर मुलजिम अब्दुल सत्तार को रिहा करने के अहकाम जारी किए। अब्दुल सत्तार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजाए मौत दी गई थी। चिश्तिया में थाना शहर फरीद की पुलिस जलाद बन गई। साजिद नामी शहरी बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार, बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। साजिद का बाजू टूट गया, जिस्म के दीगर हिस्से भी मुतासिर। अदालती बेल्ट ने साजिद नामी शहरी को थाने से बरामद कर लिया। मुतासरा शख्स को अदालत ने मेडिकल के लिए डीएचक्यू अस्पताल भेज दिया। शहरी के इंसाफ के लिए दुहाइयां।
रहीमिया खान में सिविल जज नदीम असगर नदीम की एंटी करप्शन के साथ मिलकर कार्रवाई। अदालती तामीलात करने वाले पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद शफीक से 10,000 रुपए रिश्वत भी बरामद कर ली गई। लैया में ताला तोड़ चोर गिरोह मुतहरक। एक ही रात में चोरों ने 4 दुकानों का सफाया कर दिया। चोर लाखों की नकदी और कीमती सामान ले उड़े। उधर जहानिया में बाईपास पर चोरी की वारदात। चोर बैटरी लेने के बहाने दुकानदार से 2 लाख रुपए नकदी छीनकर फरार। सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। रहीमिया खान से मोटरसाइकिल चोर गैंग के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने मुल्जिमान से 12 मोटरसाइकिल और असला बरामद किया। डेरा गाजी खान में पुलिस तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम जाँ बहक। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरपीओ डीजी खान से रिपोर्ट तलब। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सराइकी अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। नेशनल अस्पताल मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 77 मरीजों की रिपोर्ट मनफी आ गई। बहावलनगर में 86 अफराद सेहतियाब करा। रिपोर्ट मनफी आने पर घरों में चले गए। बहावलपुर में 38 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रहीमिया खान में भी 5 मरीजों ने आलमी वबा को हरा दिया। सराइकी खित्ते में आलमी वबा से मुतासर मरीजों की तादाद कम होने लगी। बहावलपुर में 11 अफराद वायरस का शिकार। तादाद 1063 रिकॉर्ड। रहीमिया खान में 15 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। बहावलनगर में मरीजों की तादाद 211 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन से हमने हालात बेहतर किए। 7 रोज में लोग एसओपीज पर अमल दरामद करें तो मरीज कम होंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं पंजाब में 30 से 35% बिस्तर खाली हैं। अस्पतालों में जगह और अद्वियात मौजूद हैं। एक टेमर इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। बहावलपुर में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटों में मिला करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान जमाली ने लेट टेस्ट रिजल्ट देने का नोटिस ले लिया। आला अफसरान के साथ अहम बैठक की। कहते हैं बहावलपुर के कोरोना टेस्ट दूसरे अजला की निस्बत तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। लैया में कोरोना के बायस मुतासरा बुकला को मिलेगा उनका हक। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से इमदादी चेक मौसूल। मेंबर पंजाब बार काउंसिल लाला गुलाम मुस्तफा ने चेक बार सदर अब्दुल सत्तार अलवी के हवाले किया। कोरोना के बायस रेस्क्यूअर्स की नाकाबिल फरामोश खिदमात। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीमिया खान में रेस्क्यूअर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और स्टाफ ने रेस्क्यूअर्स को सैल्यूट पेश किया। मियांवाली में जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम टाइगर फोर्स सेमिनार। फोर्स के जवानों में यूनिफॉर्म और कैप्स की तकसीम। जिला इंतजामिया टाइगर फोर्स की खदमात से इस्तेफादा हासिल करेगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बूरेवाला के रिहायशी पाक फौज के सपूत मोहम्मद लतीफ शहीद की आज 14वीं बरसी। अहले खाना की जानिब से कुरान खानी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोट अद्दू के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद की 10वीं बरसी। सिपाही मोहम्मद आमिर ने 21 साल की उम्र में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। बहावलपुर पुलिस के मुतादिद अफसरान के लिए बेहतरीन एजाज। आईजी पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को नकद इनाम। एसएचओ थाना बगदाद अल जदीद आजम को, एसएचओ थाना डेरा और मलिक अकबर जोया, एसएचओ धोरकोट असलम बलोच और एसएचओ मुसाफिर खाना फैसल अमीन को 40-40 हजार रुपए नकदी मौसूल। एएसआई रियाज अशरफ और अख्तर को भी 30-30 हजार का इनाम मौसूल। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डीजी खान का मुस्तहक अफराद के लिए एहसन इकदाम। 60 अफराद में फीकस 10,000 रुपए के चेक तकसीम, जबकि रजिस्टर्ड माजूर अफराद में 6 व्हील चेयर्स भी तकसीम की गईं। और रहीमिया खान सहराए चौलिस्तान में लोक फनकारों के चर्चे। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की कॉफी सुनने के लिए शुरका की बड़ी तादाद जमा। लोक फनकार दत्तोलाल भेल की आवाज सुनने वाले खूब लुत्फ अंदोज होने लगे।